Hello everyone. I hope you are doing well. So this is our first lecture, or you can say this is our orientation cum introductory lecture for intermediate microeconomics part 1 that you have in your semester 3 courses. So if you look into the course, then you have the syllabus divided into 3 parts. First part is about the consumer behavior, where you are to discuss about the general outcomes of the consumer's decisions, how a consumer deals with the different bundles and chooses the optimum one as per his or her utility. So these are the concepts that you also studied in your semester 1. Some of the topics that you had in your MME syllabus that would be used in your microeconomics as well. So if you have any doubt regarding MME syllabus, especially about the concave functions, convex functions, concavity and convexity properties, okay, and some of the topics of derivatives, including partial derivatives, along with the implicit differentiation that we had seen in our MME syllabus. So these will be used for microeconomics course. Further, second order partial derivative will also be used in your microeconomics syllabus. So first part is what you have about the consumer theory. Second part is extension to that under the cases of the consumers making the decisions under the case of uncertainty, when you have incomplete information or imperfect information, that we will build upon from unit 1. And in the last unit you have to discuss about production theory, where you would discuss about the producers reaching to the optimum level where the cost minimization and the profit maximization occurs. If you recall from your topics of your school days, that was about linear programming. In that case, you could see that duality problem was there. So one was primal and another was dual. Okay, so you could see that cost minimization and profit maximization both will be playing its role in the case of primal dual scenarios. Okay, so that is one thing that you have to take a note of it, that this microeconomics score is not typically a microeconomics thing. You would be using maths as well. So whenever you see the numericals, or whenever you try to optimize a consumer's behavior or a producer's behavior, then you have to think what are the properties of those various functions. And if you reach out to those functions, then you can check from their properties how they can be optimized as the requirement of the question B. And in the end, you will discuss about the markets. So basically, if you look at the microeconomics, then microeconomics can be studied mainly from 3 horizons. First would be from the perspective of consumers. Second would be from the perspective of producers. And third is market. So market is a place where the consumers and the producers meet. Okay, so consumers and producers have something to attain. So consumer would be trying to maximize his utility, that you have studied in your class 11th, 12th, and your semester 1. Further, for producers, you have to check about the cost minimization thing or profit maximization. Okay, and then in the market, you have to check about the different conditions of market, and you would see the examples of perfect competition, monopoly, and so on. Okay, so this is just the outline. Further, if you look about the consumer theory, then you would see that there are 2 theories about the utility thing. Okay, so first is about the cardinal utility concept that we call cardinal theory, and second is ordinal theory. अब यहां पे ध्यान देना, ये जो 2 कंसेप्ट हम देख रहे हैं, कार्डिनल थ्योरी एंड ऑर्डिनल थ्योरी,
this is not that important for your semester thing. Okay, these topics are important especially for your CVET exams and your UGC NET exams. तो यहाँ पे कार्डिनल थ्योरी और ऑर्डिनल थ्योरी आपके रीडिंग्स में नहीं दिया गया है। उसी तरह जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स करोगे तो वहां पे स्कूल्स ऑफ थॉट्स का नहीं दिया हुआ है। बट द assumptions that you have under these theories will help you learn what are the differences and how you have to solve those optimal problems. Okay, so these are the things. So always remember, cardinal theory C is there for counting, so you can count what the commodity gives you as the utility. Okay, and ordinal in giving you the ordering thing, you can just order what you have. So this was given by Marshall, this was given by Hicks. This is not that important for your semester exams, लेकिन फिर भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे कि कैसे क्या किसने थ्योरी दिया और कैसे क्या उन्होंने बताया, क्या शॉर्टकमिंग्स थे और कैसे उन्होंने बिल्डअप किया एक दूसरे के ऊपर. So ordinal theory is based upon indifference curves. Okay, so whatever these theories are to be discussed, that we will go through. And the topics from maths, we could see that you have to talk about convex function, concave functions, okay, then partial derivatives along with the differentiation. अब यहां पे मत सोचना कि यार मैथ्स फिर से पढ़ना पड़ेगा. मैथ्स टिपिकल मैथ्स नहीं करना है हमें, हमारा मैथ्स फॉर इकोनॉमिक्स है. ठीक है, सो वी आर looking at mathematical tools in the sense of economics, from the lenses of economics. That means हम लोग applied चीजें पढ़ रहे हैं, कैसे हमारा theory जो है वो work करेगा. And that was the pioneers of J.R. Hicks who gave the ordinal theory. उनका ही maths का contribution start हुआ उनसे ही. So we would be seeing that जो भी theories हम देख रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ backing है, and that backing is from the mathematical derivation. And if you say your indifference curve is convex to the origin, those properties we would be discussing. So convex to the origin means convex function if you look from the origin. Okay, जो हमने last के topics देखे होंगे आपने semester 2 में भी. So you could see that concave functions and convex functions were two different types of functions. So वहां पे आपको देखना है कि कैसे कनकेव फंक्शन को आपने डिफाइन किया था, और उसके लिए आपने यूज किया था कन्वेक्स सेट का. ठीक है, कनकेव सेट का नहीं, कन्वेक्स सेट का. ओके, सो इफ यू हैड अ कन्वेक्स सेट एज द डोमेन, देन यू कुड डिफाइन अ फंक्शन एज अ कनकेव फंक्शन एंड अ कन्वेक्स फंक्शन. अगर आपको फिर से दिक्कत हो रही है मैथ्स को जानने में, समझने में, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आप एक बार मुझे बताओगे, वी विल टेक केयर ऑफ दैट. ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम लोग, या तो आपके पास क्या करना है, एक्सेस दे देंगे मैथ्स का, आप रिवाइज कर लो, या आप ऐसे कर सकते हो जैसे कि छोटे मोटे डाउट्स है. सो फॉर स्मॉलर डाउट्स यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट अस. आपके पास सारे ऑप्शंस उपलब्ध है. यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस थ्रू द क्लास एप्लीकेशन, एंड इफ यू हैव any doubt and you want to discuss on call or WhatsApp, then you can directly do that also. ठीक है, कोई हेजिटेशन नहीं रखनी है, कभी भी डाउट पूछ सकते हो, कभी भी किसी भी टाइम पे. ठीक है, लेकिन याद रहे कि जो भी मैथ्स का यूज है उससे डरना नहीं है. ठीक है, अभी आप लोग जो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आपके राइट एंड पे एक चैट बॉक्स दिख रहा होगा. ठीक है, वहां आप लोग चैट पे क्लिक करोगे, कोई डाउट होता है तो उससे मैं आप पूछ सकते हो. ठीक है, ऑल्दो अगर मान लो अभी आप पूछ नहीं पाते हो या आप फिर से दोबारा रिवाइज करते हो, सो यू वुड जस्ट गो इनटू योर टाइम एंड आस्क व्हाट यू वांट एज पर द लेक्चर्स एंड जस्ट लेट अस नो इफ यू हैव एनी डाउट. ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें बता सकते हो. आप चाहो तो कॉल कर लो, चाहो तो चैट बॉक्स में बता दो, या जैसे भी करके कॉल भी कर सकते हो. जूम सेशन हम लोग अरेंज करेंगे फिर से. ठीक है, सो दिस आर ऑल द प्लान्स. सो इफ
we start with the syllabus, then we can see one is about the preferences. Okay? So the consumer, we are starting with the consumer theory. So for the consumer theory, the first thing is about the preferences. Okay? So preferences का मतलब क्या है? Suppose if you have a likings for some goods, ठीक है? तो यहां पे अब गुड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इफ यू हैव अ सिंगल कमोडिटी, तो आप सिंपली बता सकते हो कि कैसे एक गुड कंपेयर हो सकता है अलग अलग कमोडिटीज के सेंस में। जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि यू हैव 5 एप्पल्स एंड यू हैव 7 एप्पल्स, देन यू कैन डायरेक्टली कंपेयर। ये तो वन कमोडिटी की बात हो गई। लेकिन व्हेन यू हैव मेनी गुड्स, मेनी कमोडिटीज, कमोडिटीज और गुड्स में डिफरेंस आप याद रखना। कमोडिटीज की अगर आप बात करते हो, ओके, सो कमोडिटीज कैन बी अ गुड और अ बैड। ठीक है, अभी ऐसा क्यों है? क्योंकि कमोडिटीज एक जनरल टर्मिनोलॉजी में यूज होता है। गुड्स जिससे आपको यूटिलिटी मिल रही है, बैड्स जिससे आपको डिसयूटिलिटी मिल रही है। बैड्स लाइक स्मोक, हमारे यहाँ पॉल्यूशन है, so in Delhi whatever the pollution level is, this is harmful for us, giving us disutility or you can say negative utility। ठीक है, तो ये सारे concepts हम लोग देखेंगे। जनरल टर्मिनोलॉजी इज commodities, लेकिन एज फॉर योर स्टैंडर्ड आप इसको कमोडिटीज बोलो, गुड्स बोलो, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपको स्पेसिफाई किया गया है कि आप बैड्स के बारे में बात कर रहे हैं। बट if you want to have a confidence over it, then you should always distinguish between goods and commodities. You can say that goods are the subsets of commodities। ठीक है, ये इस तरह के डिस्कशंस को आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां पे कंज्यूमर थ्योरी की जब बात करोगे तो कंज्यूमर थ्योरी में आपने बंडल्स को देखा। सो कंजम्पशन बंडल्स, you need not have just one commodity, okay? So you will have a number of commodities and you have to compare different bundles of those different commodities। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग रिप्रेजेंटेशन जो यूज करेंगे दैट वुड बी विथ वेक्टर्स। वेक्टर्स में आपने देखा था कि वेक्टर्स को आप कंपेयर कैसे कर सकते हो। वेक्टर को आप कंपेयर करते थे उनके जो भी डायमेंशंस है उससे कंपेयर करते थे कि वेक्टर का लेंथ कितना है, या उसी तरह लेंथ या नॉर्म जो है। ठीक है, अगर उस वेक्टर में कंपेयर करना है तो कैसे आप कंपेयर करोगे? ठीक है, तो अगर दो अलग डायमेंशन का है तो आप वेक्टर को कंपेयर नहीं कर सकते हो। सो वेक्टर्स मस्ट हैव ऑफ द सेम डायमेंशन। सेम डायमेंशन का मतलब क्या है? उसमें जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, दो वेक्टर को अगर आप कंपेयर कर रहे हो, then those two vectors must have same number of elements, यानी कि same number of components। ठीक है, और same number of components का मतलब क्या है? अगर हम commodity space की बात करें, in that case we must have the same number of commodities in two different baskets। ठीक है, मतलब अगर आपके पास दो बास्केट है कमोडिटी का, बंडल ए एंड बंडल बी, ठीक है, इन दोनों में आप देखोगे कि तीन, आपको मान लिया जाए 3 फ्रूट्स की बात हो रही है, एप्पल, ऑरेंजेस एंड से बनाना, एंड इन द सेकेंड बास्केट ऑल्सो यू हैव एप्पल, ऑरेंजेस एंड बनाना, और उन तीनों के जो नंबर्स हैं उनको आप कंपेयर करोगे। ठीक है, तो ये तो इतना इजी होगा नहीं वेक्टर्स को कंपेयर करना। सो वेक्टर्स से जो यूटिलिटी हम बनाएंगे उस यूटिलिटी को हमें कंपेयर करना है, क्योंकि कंज्यूमर को ये फर्क नहीं पड़ता उसने कितने बनाना खाए, कितने एप्पल खाए। Consumer is always curious about how much utility he attains। अब आप पूछोगे यूटिलिटी होता क्या है? यूटिलिटी इज द सेटिस्फेक्शन लेवल। सो इफ आई से दैट कैन यू थिंक दैट देयर वुड बी some utility level when you consume 2 apples, so you would say that it is hard to number this particular utility that you have derived for 2 apples। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? आपने ऐसा कुछ बोला, then I would say if you can compare
the utility attained by 2 apples and the utility attained by 6 bananas, then can you rank them? Then you would say yes, I can rank them. ओके तो ये जो रैंकिंग वाली बात है वो बात आती है आपकी ऑर्डिनल थ्योरी में, ये आती है आपकी ऑर्डिनल थ्योरी में। कार्डिनल थ्योरी में क्या आता है, इफ यू असाइन सम नंबर्स, ठीक है, सो यू कैन काउंट योर यूटिलिटी। ओके, काउंटिंग इन द सेंस दैट आपके पास जो भी यूटिलिटी है आपके 2 एप्पल खाने से, सो यू वुड से that consuming 2 apples I could gain a utility of say 10. Okay, so 10 is the utility that you had from the consumption of 2 different apples or 2 apples that you had in your consumption bundle. ठीक है, तो जब आप काउंट कर सकते हो, एक नंबर असाइन कर सकते हो, तो कार्डिनल यूटिलिटी यूज होता है। जब आप सिर्फ ऑर्डर कर पाते हो दैट इज ऑर्डिनल थ्योरी। ठीक है, तो ये हम लोग फिर से रिविजिट करेंगे, लेकिन इसमें जब इंडिफरेंस कर्व की बात करेंगे, सो इंडिफरेंस कर्व वाज इन द ऑर्डिनल थ्योरी गिवन बाय हिक्स। ठीक है, ऑर्डिनल थ्योरी में एक और नाम देखोगे हिक्स एंड एलन, ये आपके पार्ट का नहीं है, अंडरग्रेड में नहीं पूछेंगे नाम वगैरह, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है। ठीक है, तो आप जब पढ़ोगे then you could say that you are given an indifference curve and that indifference curve is assigned some numeric value. अब यहां पे आपको क्या किया गया, मैंने बोला इंडिफरेंस कर्व ऑर्डिनल का पार्ट है, इसमें सिर्फ ऑर्डर कर सकते हो, यू कांट गिव अ नंबर टू इट बट यू गिव सम नंबर। ठीक है, कोई फंक्शनल वैल्यू देते हो और वो आपका कार्डिनल थ्योरी से है। तो एक तरह से आप समझो कि दोनों को मिक्स करके आपको यूज करना है, यानी कि इसमें जो भी नंबर दिए गए हैं या जो फंक्शंस दिए गए हैं उसको यूज करते हुए आप क्या करोगे, इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। एक बार इसको नोट डाउन कर लो 30 सेकेंड्स में, फिर उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करता हूं। कोई इसमें कोई डाउट है तो बताओ, अगर आपको कोई भी अभी भी कोई परेशानी रहती है, जैसे कि मान लो आपको कुछ डिस्कस करना है, कुछ बताना है, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो। क्लास के बीच में भी बोल सकते हो, क्लास के बाद भी बोल सकते हो, या किसी भी टाइम पे जब आपका प्रेफर्ड टाइम है आप बता सकते हो। ठीक है, इसको नोट डाउन करो एक बार। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया। सो नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे जब प्रेफरेंसेस के बारे में आप जानोगे, सो यू वुड सी दैट प्रेफरेंसेस मीन you have to check about the consumer's choices or decisions between 2 different bundles. Okay, so you have to discuss about some relations. Okay, so relations and functions you have already discussed. So relations में आपको क्या करना कि एक सेट से दूसरे सेट में आप कैसे असाइन करते हो। Okay, so if we talk about the preferences, then we discuss about 2 relations. One is preference relation and another is indifference relation. So these are the 2 different things. ठीक है, indifference relation means between 2 different bundles you can't choose either of those 2. ठीक है, so इन दोनों में आप एक को चूज नहीं कर पा रहे हो, so this is your indifference relation, or you can say you are indifferent between those 2, or you can say if you are given 2 different bundles, in that case you can choose either of the 2. ठीक है, यानी दोनों में आप ये भी नहीं गेस कर सकते हो किसमें आपको कम यूटिलिटी मिल रही है, या ये भी नहीं बता सकते हो किसमें आपको ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, लेकिन ये जरूर बता सकते हो कि दोनों में कोई भी आप ले सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों से आपको यूटिलिटी सेम मिल रही है। ठीक है, इस तरह का थॉट प्रोसेस अगर आप डेवलप करते हो, दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस रिलेशन। दैट मीन्स इफ अ कंज्यूमर अटेंड्स the same utility from 2 different bundles से सेम यूटिलिटी मिलना इज योर इंडिफरेंस रिलेशन। प्रेफरेंस रिलेशन मतलब क्या है कि इफ यू प्रीफर वन बंडल ओवर अनदर बंडल। अब यहां पे बंडल की जब हम बात कर रहे हैं, देन ऑलवेज रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट द कमोडिटीज वेक्टर। ठीक है, वेक्टर के सेंस में, यानी कि यू हैव अ सेट ऑफ कमोडिटीज। ठीक है, सिंगल कमोडिटी नहीं है, याद रखना,
सिंगल कमोडिटी अगर होता तो आप डायरेक्टली देख सकते हो कि जिसमें ज्यादा गुड है या कमोडिटी है वहीं आपको ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है, ठीक है। और उसको बोलते हैं मोनोटोनिसिटी, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। सो प्रेफरेंस रिलेशन का मतलब है कि इफ x and y you have, so x and y you have, then if x is preferred to y, in that case you call this as preference relation, x is preferred over y। और इस तरह के नोटेशन को बोलते हैं स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, ठीक है। अगर इसी दो बंडल के बीच में आप इनडिफरेंट होते और कंज्यूमर कोई भी इनडिफरेंट होता, you would use tilde saying that the consumer is indifferent between these two bundles and these two bundles are x and y। इसको स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस बोलते हैं। क्यों स्ट्रिक्ट? क्योंकि x will always be preferred over x। लेकिन इसी का एक और एग्जांपल है, x is weakly preferred over y। This is weak preference। Why weak? Because x is not always preferred over y। In some cases x and y are indifferent, ठीक है। तो ये तीन आपको देखने होंगे। सो आपने पहले मैथ्स के नोटेशंस में भी देखा होगा, वीक इनइक्वालिटी एंड ए स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटी, दैट यू कॉल एज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। सो उसी तरह आपको यहां भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जब कमोडिटी बंडल को कंपेयर करो, सो आई सेड दैट यू कांट कंपेयर टू डिफरेंट बंडल्स, ठीक है। कैसे कंपेयर करोगे? उसमें अलग अलग डायमेंशन है ना। अगर एक डायमेंशन होता तो आप कंपेयर कर सकते थे, लेकिन अलग अलग कमोडिटीज हैं। सो यू कांट से दैट 2 1 1 इज ग्रेटर और 1 2 1 इज ग्रेटर, आप बता ही नहीं सकते हो ना। सो इससे जो प्रेफरेंस निकलेगा, यानी कि दो डिफरेंट बंडल है, मान लो वन इज एप्पल, अनदर इज बनाना एंड देन थर्ड वन इज ऑरेंजेस, ओके। सो अगर कंज्यूमर इसको प्रेफर करता है इसके ऊपर, देन यू कैन से दिस बंडल x एंड दिस बंडल y। इफ कंज्यूमर इज प्रेफरिंग बंडल x, then you could say x is preferred over y। x is preferred over y। ये वाला नोटेशन है, यहां मैं हटा ही देता हूं, ठीक है। सो देखना, ये जो नोटेशन है मैथ्स के, इससे मिलता जुलता है ग्रेटर देन वाले साइन से, लेकिन दिस ग्रेटर देन साइन एंड दिस साइन, दीज टू आर डिफरेंट। सो नोटेशन में आप ध्यान देना कि नोटेशन में आप जब भी लिखोगे तो प्रेफरेंस रिलेशन थोड़ा सा टिल्ट कर देना, ठीक है। इसके तरह से मत बना, थोड़ा कर्व बना देना, ठीक है। इससे पता चलेगा बंडल में बना रहे हो, लेकिन अंडर ग्रेड में इस पे मार्क्स नहीं कटते हैं। लेकिन मैं अभी से कहूंगा कि तुम आदत ही बना लो। और इनडिफरेंस जैसे हम लोग बनाते थे ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन, उसी तरह वी विल बी यूजिंग दिस प्रेफरेंस रिलेशन, प्रिफर टू और इनडिफरेंट टू y, x इज प्रिफर टू और इनडिफरेंट टू y, ओके। इसी तरह अगर ये इक्वेशन देखोगे, सो यू कुड सी दैट x एंड y आर इनडिफरेंट, ठीक है। द कंज्यूमर कैन चूज ईदर ऑफ दिस टू, ठीक है। कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। So these are the three different things, जिसमें कि one was this, second was this, third one is this, ठीक है। So आप पूछोगे कि वीक इनइक्वालिटी और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? वीक इनइक्वालिटी was this thing, ठीक है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी was this notation, ठीक है। उसी तरह आपको मिलता जुलता दिखेगा वीक प्रेफरेंस एंड स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस। So what is your weak preference? Weak preference is when you weakly prefer x over y. Weakly prefer x over y. Okay, so x is weakly preferred over y. Okay, so in this case you could see that x has utility greater than or equal to the utility obtained from the consumption of y. ठीक है। स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस यू हैव x इज स्ट्रिक्टली प्रिफर्ड ओवर y, ठीक है। इसको एक बार नोट डाउन कर लो। ऑल्दो इस पे
एक हम लोग फिर से नोट्स भी करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्टरी क्लास, सो आई विल नॉट गो सो डीप, जस्ट आपको समझने के लिए। सो यू जस्ट टेक अ नोट ऑफ इट सो दैट वंस यू लुक इनटू योर नोट्स देन यू कैन क्लिक व्हाट यू हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। इसको नोट डाउन करो एक बार। So you can also write that X is weakly preferred over Y, ठीक है। आप चाहो तो वीक प्रेफरेंस के सामने आप लिख सकते हो X is weakly preferred to Y और over Y, ठीक है। उसी तरह स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस की जगह लिख सकते हो यहाँ पे विद दिस सिंबल, दिस नोटेशन, X is strictly preferred to Y और over Y। इसको लिख सकते हो इनडिफरेंस वाले को, कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन एक्स एंड वाई। एग्जाम में बिटवीन की जगह पे आप जो ये नोटेशन यूज करते हो ये मत करना, ठीक है। Okay. So this is all that we had to start with the consumer theory and the preference relation. And upon this, we will build off to get about the properties of indifference curves, and those would be based on the assumptions, ठीक है। assumptions में आप देखोगे मोनोटोनिसिटी का assumption है, उसके अलावा आपका ट्रांजिटिविटी का assumption है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में है, डिमिनिशिंग एमआरएस, ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एमआरएस वी हैव आल्सो डिस्कस्ड इन योर एमएमई कोर्स, ठीक है। सो इस तरह के कोर्सेस हम लोग देखेंगे। सो वी विल स्टॉप इट हियर फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय।